Praise the Lord. Praise the Lord. Once again we welcome you all in the name of Jesus फिर Christ. से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating word of God, we should humble ourselves and we should come to God with faith. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए और उसके सम्मुख विश्वास के साथ आना चाहिए। Father, we come in your presence. पिता आपकी उपस्थिति में हम आते हैं। We seek your face. आपका मुख हम ढूंढते हैं। We want wisdom. हम ज्ञान पाना चाहते We हैं। want your word. आपका वचन हम चाहते हैं। We are here sitting here to listen to your voice. आपका आवाज सुनने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। Talk to us. हमारे साथ बात करो। Man shall not live alone by bread, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, but by thy word that you speak. लेकिन आप जो बोलते हो वह आपके वचन से जीवित रहेगा। We are here listening your voice. हम यहाँ पर आपका वचन, आपका आवाज सुन रहे हैं। Talk to us. हमारे साथ बात करो। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। As we are studying Jesus' word, यीशु मसीह के वचनों का अभ्यास जब हम कर रहे हैं help us. तो हमारी मदद करो। Come Holy Spirit, पवित्र आत्मा हो, help us. हमारी सहायता करो। Guide us. हमें मार्गदर्शन Lead दो। us in your truth. आपके सत्य में हमें ले जाओ। If there is sin, we ask forgiveness. और यदि कोई पाप है तो हम माफी चाहते We हैं। humble ourselves. हम अपने आप को नम्र करते We हैं। accept our fault. हमारी गलतियों को हम मान लेते हैं। Forgive us. हमें माफी दो। You are faithful, as your word says. जैसे आपका वचन कहता है आप विश्वास योग्य हो। We confess our sin. हम हमारे पापों को कबूल करते हैं। Thank you for forgiving our sin. हमारे पापों को माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। Talk through your word. आपके वचन के द्वारा बात करो। Father, in Jesus' name we pray. पिता यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते Bless हैं। all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Good morning. सुप्रभात। Once again we welcome you all in the name of Jesus फिर Christ. से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। We are studying gospel parables. सुसमाचार के दृष्टांतों का हम अभ्यास करते हैं। Whatever Jesus Christ had said, the stories and whatever mystery he said, we are talking and studying his word. यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहानियां दृष्टांत कहे और भेद की बातें कही उसके बारे में हम अभ्यास कर रहे हैं। This is 25th parable of Jesus Christ. यीशु मसीह का यह 25वां दृष्टांत है। And this is the story of a prodigal son who emptied himself and he returned back to house. और यह एक भटके हुए बेटे की कहानी है Who returned back to his home. जो अपने घर वापस आता है। In Luke 15 chapter 21 to 32 verses. लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय 21वें वचन से 32 verses. 32वें वचन तक। Here Jesus Christ said this story. यीशु मसीह ने यहाँ पर यह कहानी कही। Okay, it's from 11 verse to 32. अच्छा 11वें वचन से 32वें वचन तक। Jesus continued saying to the people, लोगों को यीशु मसीह ने इस तरह से कहते हुए बात शुरू की a man had two sons. कि एक मनुष्य के दो बेटे थे। And verse 12, और 12वां वचन। and the younger of them said to his father, Father, give me my share of my inheritance. और जो छोटा बेटा था उसने कहा कि पिता विरासत में मेरा जो भी भाग है वो मुझे दे दे। And so father, he divided the property between these two sons. इसलिए पिता ने दोनों बेटों में अपनी संपत्ति बांट दी। A few days later, the younger son got together all that what he had and went away into another land or distant land. और बहुत दिन नहीं बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया। He went far from this father's house. अपने पिता के इस घर से वह दूर चला गया। And there he emptied himself. He was run whatever he had, the possession or what wealth he had all spent it. और वहाँ and he wasted all that money. और वहाँ पर उसके पास जितनी संपत्ति थी वह उसने खराब कर्मों में सब उड़ा दिया। Living a bad lifestyle, he emptied himself.
एक खराब जीवन जीते जीते उसने सब कुछ खाली कर दिया। So here Jesus Christ saying a story of two sons and one father. तो यहाँ पर यीशु मसीह दो बेटे और एक पिता की कहानी कहते हैं। The younger son, the small son, he went far from his house छोटा बेटा जो था वह उसने अपना घर छोड़ दिया और दूर चला गया and spent all what he had, and he was now he became a beggar now. और उसके पास जो कुछ भी था सब कुछ उसने लुटा दिया और अब वह गरीब भिखारी बन गया। Now he had nothing that he actually he wanted. That everything he lost. वो जो मांगता था सच में और उसके पास जो कुछ भी था वह सब कुछ अब उसके पास नहीं रहा था। Verse 14 says, 14वां वचन कहता है, after he had spent all that he had, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका जो उसके पास था, and where he was staying there was a famine in that country. तो जिस देश में वह रहता था वहां बड़ा अकाल पड़ा। Suddenly there was a famine, अचानक अकाल पड़ा and he became in want. Or we can say he was now in needy. और फिर वह वहां कंगाल हो गया। Verse 15. 15वां वचन, So he went to one man in that country saying that I want job. और वह उस देश के निवासियों में से एक के पास गया और कहा कि मुझे कोई काम दे। And he sent him into fields to feed that swine. और उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। He got this good job. उसे यह अच्छी नौकरी मिली। Verse 16. 16वां वचन, And he would fain have filled his belly with the hurts that the swine did eat. Husk. और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे वह अपना पेट भरे। Now here we see this boy, he was in such a hunger position that he wanted to eat what the swine were eating. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यह लड़का ऐसे भूखमरे में आया, इतनी भूख उसे लगी थी कि सुअर जो खाते थे वह खाने का उसका मन किया। And no man helped him and gave him because there was famine for everyone. और कोई मनुष्य ने उसकी मदद नहीं की और उसे कोई कुछ नहीं देता था क्योंकि सारे देश में अकाल था। Now this boy, young man, this young fellow was waiting for wages. और अब यह जो जवान बेटा था वह अपने पगार के लिए राह देखता था। And he was there starving, or he was now he was not able to even stand. Your word says he was faint. और he was in such a hunger. और वहां पर वह भूख से मर रहा था, इतना भूखा रहता था। Verse 17. 17वां वचन, And then he came to his sense, or we can say he came to himself. Who I am. He now understood who I was and now who I am. और उसके बाद उसका दिमाग खुल गया, उसे समझ आई और हम कह सकते हैं कि उसे खुद के बारे में पता चला कि अब मैं कौन हूँ। Who I was. और पहले मैं कौन था। He came to his sense. और वह यह बात उसको अब समझ में आई। He understood that I took a wrong decision. और उसे समझ आया कि मैंने एक गलत निर्णय ले लिया And है। verse 17 here Jesus continued the story saying this boy, this brother, the younger brother, he thought about his house. और 17वें वचन में यीशु मसीह ने आगे कहानी चलाते हुए कहा कि यह जो जवान छोटा बेटा था उससे अपना घर याद आया, उसके बारे में सोचा। My father had many servants and he had hired many servants. कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर हैं और बहुत सारे मजदूर मेरा पिता रखता है। And they all are having bread enough and to even spare. और उनके पास भोजन से भी अधिक उनको रोटी मिलती है। And here I am dying of hunger, I am perished. और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ, नाश हो रहा है मेरा। So here this boy, he came to his sense and now he decided to go back to his house. तो यहाँ पर इस लड़के को बुद्धि आई, समझ आई और उसने निर्णय लिया
कि मैं अपने घर वापस जाऊंगा। Verse 19 19वां वचन, and okay, 18. 18वां वचन। Now this boy, this son, he thought that if I go back, what my father would think. अब यह बेटे ने ऐसा सोचा कि यदि मैं वापस जाऊंगा तो मेरा पिता क्या सोचेगा। But I will say to him, लेकिन मैं उससे कहूंगा Father, I have taken a wrong decision. I am a sinner. कि पिता मैंने गलत निर्णय लिया था और मैं पापी हूँ। I have sinned against you and I have sinned against the heaven. और मैंने तेरे विरोध में पाप किया है और स्वर्ग के विरोध में पाप किया I है। am now no longer worthy, or I am not fit to be called your son. और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। Hire me as your servant and I will serve you. और अब तू मुझे एक अपने मजदूर की नाई मजदूर जैसा समझ के रख ले और मैं तेरी सेवा Here करूंगा। I am starving, now I'm going to stand and I'm going to go back home. यहाँ मैं भूख से मर रहा हूँ और इसीलिए अब मैं खड़ा होके मेरे घर वापस जाऊंगा। Verse 20. 20वां And he वचन, got up and went to his father's home. तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। While he was still on the way to the house, वह अभी दूर ही था, अपने घर से दूर ही था। long way off, वह रास्ते में घर से दूर था। his father saw him. उसके पिता ने उसे देखा And the father, deeply moved, or we can say he was moved with compassion, seeing his son's situation. और पिता को उसके बेटे को देखकर बहुत दया आई, उसका हृदय भर गया। And he could not hold himself. He cried and he ran to hug his son. और पिता अपने आप को रोक नहीं पाया और रोने लगा और अपने बेटे को गले लगाने के लिए दौड़ा। He ran and threw his arms round him, his neck, and kissed him. और पिता ने Tightly hugged him. दौड़कर अपने बेटे को पकड़ा, आलिंगन किया और उसे बहुत चूमा। And verse 21, और 21वां वचन, the son said, बेटे ने कहा, Father, पिता, I have sinned against you and I have sinned against heaven. कि मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। I am not worthy to be kissed. और तू मुझे चुंबन करे उसके योग्य मैं नहीं रहा। I am no longer fit to be called your son. और इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। Don't hug me. मुझे गले मत लगा। Make me one of your hired servant. तेरे मजदूर जो तूने रखे हैं उनमें से एक दास के समान मुझे रख ले। But this father not listening to this son. लेकिन पिता ने इस बेटे की बात नहीं सुनी। And he said, और उसने कहा, O servants, कि हे दासो, quickly fetch a robe, take out a new cloth. कि फटाफट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालो। The best, very best I want. I command you, my servants. कि हे मेरे दासों, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालो। Bring me ring so I can make him wear. और उसे पहनाओ और मुझे एक अंगूठी दो ताकि मैं उसे पहनाऊं। And I want sandal that he should wear in his feet. और मुझे जूतियां भी चाहिए कि मेरा बेटा अपने पाँव में पहने। And bring the fattened calf and kill it and let us eat and make merry. और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए। So your father was so joyful तो यहाँ पर पिता को इतना आनंद हुआ that he celebrated welcoming his son. कि उसने अपने बेटे का स्वागत करते हुए उत्सव मनाया। Now here we see the son has lost a ring and even lost his sandal and lost his good cloth. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेटे ने अपनी अंगूठी भी खो दी थी, अपने जूते भी और अपने अच्छे कपड़े भी खो दिए He थे। went from father's house well dressed up. अपने पिता के घर से वह अच्छे वस्त्र पहन कर गया But था, now he is returning empty. लेकिन अब वो खाली होकर कंगाल होकर वह वापस आया है। And verse 24, और 24वां वचन, this father said, यह पिताजी ने कहा,
there was a feast, and he announced to the people. वहां पर उत्सव का माहौल था और लोगों के सामने पिता ने यह कहा This is my son, कि यह मेरा पुत्र है and he was dead, और वह मर गया and था is alive again. लेकिन फिर जी गया है। He was lost, वह खो गया and था I searched him a lot. और मैंने उसे बहुत ढूंढा, Now he's found, अब वह मिला है। and let us begin celebration. अब तो आइए अब उत्सव मनाए। Verse 25. और 25वां वचन, Meanwhile, this function was going on. Meanwhile, older son, the elder one, he came back from the field. और यह उत्सव जब जारी था तब बड़ा बेटा अपने खेत से वापस आया As he approached to the house, और जैसे वह घर पर पहुंचा he heard music and dancing. तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना And he called one servant and said, "What's going on in the house?" और उसने एक दास को बुलाकर पूछा कि यहाँ घर में क्या हो रहा है। And the servant said, verse 27, और 27वां वचन, उस दास ने कहा, "Your brother has returned back, तेरा भाई वापस आया है and your father has arranged all this feast." और तेरे पिता ने ये पूरा पर्व मनाया है। Verse 28, 28वां वचन, this elder son, the younger son, became angry and refused to go in. I am not going to go in, and I am not going to see that my small son, small brother. और यह बड़े बेटे को गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं मेरे उस छोटे भाई को अब नहीं देखूंगा। I don't want to meet that prodigal son. और वह फिजूल खर्ची बेटे को मैं देखना नहीं चाहता। And so this elder son or the older son, he refused to go in and enjoy. इसीलिए अब बड़े बेटे ने अंदर जाकर आनंद करने का मना कर दिया He went in his house, in his room. और वह अपने रूम में चला गया। And father knew, when he came to know that my older son is come, और जब पिता को पता चला कि मेरा बड़ा बेटा भी आया है, he called him and he prayed. Your word says in verse 28, he played to him. He begged this elder son. तो यहाँ पर शब्द लिखा गया है कि पिता ने बाहर आकर उस बड़े बेटे को विनती की, उसे मनाया प्रार्थना जैसा, Accept your brother. कि तेरे भाई का स्वीकार कर। Look, all this year he was out and now he is back. कि देख इतने सालों तक वह भटका हुआ था लेकिन और अब वापस आया है। But the brother said, लेकिन बड़े भाई ने कहा, this elder brother said, या बड़े भाई ने कहा, Father, look, all this year I have served you and I have been obedient to you and I obeyed the commandment of your, yet you have not gave me even young goat so could celebrate with my friends. कि देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। Verse 30. और 30वां वचन, But when this son, but your son, he returned, losing all the wealth after prostitute. You are having feast for him. What is this unjust? परंतु तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी और फिर वापस आया है, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया, ऐसा अन्याय क्यों? And the father said, तब पिता ने कहा, you are always with me, कि पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है and all that is mine is yours. और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। But it was fitting to celebrate. It is good to celebrate and to be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and I found him. परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था और फिर जी गया है, खो गया था और अब मिल गया है। So here we see this story that the son returning back. तो यहाँ पर इस कहानी को हम देखते हैं कि वह खोया हुआ बेटा वापस आता है। You can give any title to this story or this parable. इस दृष्टांत को या इस कहानी को आप कोई भी शीर्षक दे सकते हो। People gave it as a prodigal son. लोगों ने इस कहानी का शीर्षक दिया है कि फिजूल खर्ची बेटा
या भटका हुआ बेटा, or I'd say lost son now was found. या फिर कह सकते हैं कि एक खोया हुआ बेटा जो अब मिला, Or we can give a title merciful father. या फिर हम ऐसा भी शीर्षक दे सकते हैं कि एक दयालु पिता, Or we can say loving father. या फिर हम कह सकते हैं एक प्रेम करने वाला पिता, Or we can say this is a story of bad brother. और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो खराब भाइयों की यह कहानी है, Or we can say time repairs all. या फिर हम ऐसा भी कह सकता है कि समय ही सब कुछ वापस ला देता है, Or we can say bad time make man wise. या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि खराब समय मनुष्य को ज्ञानी बना देता Or we है, can say this is a story of father and his son. और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह एक पिता और उसके पुत्र की कहानी Or we है, can say a story of good God and bad son. और हम ऐसा भी कह सकते हैं यह कहानी एक अच्छे परमेश्वर और खराब बेटे की कहानी, A good father and bad son. माफ करना, एक अच्छा पिता और एक बुरा पुत्र की कहानी, Or we can say this is a story of good God and the sinner man. और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह कहानी एक भले परमेश्वर और पापी मनुष्य के बारे में है। But I will say one thing. लेकिन मैं एक बात कहूंगा, God loving Jew and Gentiles. परमेश्वर यहूदियों से और अन्य जाति के लोगों से प्रेम करता है, यह बात है। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा। Now in this story we have a character of father, two sons, अब इस कहानी में हमारे पास तीन पात्र है, एक पिता है और उसके दो बेटे हैं, and also the father is dividing whatever wealth he had to this, distributing to these two sons. और पिता अपनी जो कुछ भी संपत्ति है वह यह दोनों बेटों में बांट रहा है। And there is a story of a property और संपत्ति के बारे में भी यहाँ कहानी है, that he had all that wealth and then he lost that wealth. What is that wealth? उसके पास अपनी सारी संपत्ति थी और उसने अपनी संपत्ति खो दी, वह संपत्ति क्या थी? Now and also there is a story, this prodigal son who went out and he was run and he went in a job where he got nothing. What is the story? और यह फिजूल खर्ची बेटे के बारे में कहानी है कि उसने जाकर अपना सब कुछ गवा दिया और दूसरी जगह काम पर लगा जहां उसे कुछ नहीं मिला। तो यह बात क्या है? And also we see the word ring and new robe and sandal. और हम यहाँ पर शब्द देखते हैं अंगूठी और नया वस्त्र और जूती। What we compare with this all these thing too? ये सारी बातों को हम किस बात के साथ तुलना कर सकते हैं? We can say Jesus Christ was talking about Father, Heavenly Father. हम ऐसा कह सकते हैं कि यीशु मसीह स्वर्गीय पिता के बारे में बात कर रहे थे। The Father, He is our God. और जो पिता है वो हमारा परमेश्वर है। And two sons, one obedient son and another who love worldly things. और दो बेटे के बारे में कहानी है, एक बेटा आज्ञाकीत है और दूसरा बेटा है जो संसार में दुनिया को प्रेम करने वाला है। Many have compared this elder brother with, they have interpreted differently. बहुत लोगों ने यह बड़े भाई की तुलना अलग अलग तरीके से की है। I will say there are two types of teaching in the world. इसके बारे में मैं कहूँगा कि संसार में दुनिया में दो तरह के शिक्षण हैं। One people say that these elder brother represent the Christian people in the church. तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, एक तरह के लोग ऐसा कहते हैं कि यह बड़ा भाई है, वह कलीसिया के मसीही लोग हैं। And today the newcomer are not invited or are not greeted when a new believer come enter in the church. और आज जब नए विश्वासी लोग कलीसिया में आते हैं तो यह पुराने मसीही लोग उनका स्वागत नहीं करते, उनको सलाम नहीं करते। And so Jesus Christ compared the elder son with the people who are old in church. तो यीशु मसीह ने बड़े बेटे की तुलना कलीसिया के ऐसे लोगों के साथ की
जो पहले से कलीसिया में है, जो पुराने हैं। They teach the brother as he was with the father, and the unbeliever repenting and coming back are not respected. और वे ऐसा सिखाते हैं कि जो बड़ा बेटा था वह पिता के साथ था, विश्वासी था, और जो छोटा भाग गया वे सब अविश्वासी लोग हैं जो बाद में पछतावा करके आते हैं, उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। When someone repent doing sin, people they don't forgive them anymore. जब कोई पाप से प्रायश्चित करता है तो दूसरे लोग फिर उनको माफ नहीं करते हैं। They are not welcome back, as a big brother was angry with the father even. और ये बड़ा भाई जैसे पिता के साथ गुस्से में था, उसी तरह ऐसे पछतावा करने वाले लोगों को वापस उनको स्वीकार नहीं किया जाता है। The elder brother are such type of Christian people who doesn't forgive, and they blame again and again to those who had been pardoned. यह बड़ा भाई इस तरह के मसीही लोग हैं जो अपने जो पाप करने वाले छोटे भाई जैसे लोग हैं, उनको हर बार उनके ऊपर दोष लगाते हैं और उनको कभी माफ नहीं करते। And they don't say that he really has been repented person. और वे ऐसा भी नहीं कहते हैं कि उसने सच में प्रायश्चित किया है, ऐसा कबूल नहीं करते। They don't welcome them in the church. और फिर वे उनको कलीसिया में वापस नहीं लाते, स्वागत नहीं करते। So those who think Jesus was comparing with Christian is a wrong interpretation. तो जो लोग इस तरह से सोचते हैं कि मसीही लोगों के साथ यीशु मसीह बड़े भाई की तुलना कर रहे थे, तो यह एक गलत अर्थ है। For in the church it is a lesson that, and we learn that we should love our brother. क्योंकि कलीसिया में तो यह पाठ सिखाया गया है और हम सीखते हैं कि हमें हमारे भाई से प्रेम करना है। Because we too were sinner one time. क्योंकि हम भी एक समय पर तो पापी ही थे। 1 John 5th chapter verse 1 says, पहले यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय पहला वचन कहता है, if anyone believe in Jesus Christ, यदि कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है, if anyone say that Jesus is the Christ, they are born of God. यदि कोई ऐसा कहे कि यीशु ही उद्धार करता है, मसीहा है, तो वे परमेश्वर से जन्मे हैं। And yes, everyone who loves Jesus Christ, और हाँ, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह से प्रेम करता हो, he will also love the one who are begotten of Father. तो वह व्यक्ति दूसरे जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं उनसे भी प्रेम करेगा ही। If I am born of God, if I believe so, यदि मैं ऐसा मानता हूं कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, and the another one who too is born of God, I will love him definitely. और दूसरा भी कोई परमेश्वर से यदि जन्मा है तो मैं सच में उससे प्रेम करूंगा ही। And if I say I love God and I hate my brother, then I am a liar. और यदि मैं ऐसा कहूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मेरे भाई से नफरत करता हूं, तो फिर मैं झूठा हूं। 1 John 4:20 says, पहले यूहन्ना की पत्री 4वां अध्याय 20वां वचन कहता if है, anyone say I love my father, I love my God, यदि कोई ऐसा कहे कि मैं मेरे पिता से प्रेम करता हूं, मेरे परमेश्वर से प्रेम करता the हूं, father has having not only one son, he had many sons. तो पिता का केवल एक ही बेटा नहीं था, उसके बहुत सारे बेटे हैं। Don't think only you are beloved one. ऐसा मत सोचो कि केवल आप ही उसके प्रिय He had हो, many children. उसके बहुत सारे संतान And if थे। I love my God, और यदि मैं मेरे परमेश्वर से प्रेम करूं, if I say he's my father, और यदि मैं ऐसा कहूं कि वह मेरा पिता and है, if I hate my brother, और यदि मैं मेरे भाई से नफरत करूं, then I'm a liar. तो फिर मैं झूठा हूं। For he that love not his brother whom he has sinned, how can he love God whom he has not sinned? क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है उसे प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से जिसको उसने देखा नहीं उससे प्रेम कैसे रख सकता है? So the elder son cannot be a Christian man. तो वह बड़ा भाई एक मसीही व्यक्ति नहीं हो सकता, Because Bible says क्योंकि बाइबल कहता we है have to love our brother. कि हमें हमारे भाई से प्रेम करना है। And if who hate his brother is a murderer, in 1 John 3 and verse 15 it says. और पहले यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 15 वचन कहता है कि जो अपने भाई से नफरत करता है वह खूनी है। And the one who is murderer, और जो खूनी है, don't think he is going to
he is going to have eternal life. ऐसा मत सोचो कि वह अनंत जीवन पाएगा। Don't think he is going to continue with God forever. परमेश्वर के साथ हमेशा अनुभव बना रहेगा, ऐसा मत सोचो। So people, they compare this elder brother with the old Christian people. तो लोग या बड़े भाई को कलीसिया में जो पुराने लोग होते हैं, मसीही लोग, उनके साथ तुलना करते They हैं don't welcome the newcomer. और वे नए विश्वासी लोगों को आने नहीं देते, स्वागत नहीं करते। Even they don't rejoice when a newcomer they see. और जब कोई नए व्यक्ति को आते हुए वे देखते हैं तो उनको आनंद भी नहीं होता। I love to see new people in Christ. नए लोगों को मसीह में आते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। Even I want to kiss those people who are reading Bible. और जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको मैं चुंबन करना भी चाहता हूँ। This elder brother cannot be a Christian. यह बड़ा भाई मसीही या ईसाई व्यक्ति नहीं हो सकता। Other people, they interpret the elder brother with Jesus Christ and the small brother, the younger, as first Adam. और कुछ लोग ऐसे अर्थ करते हैं कि जो बड़ा भाई है वह यीशु मसीह जैसा है और जो छोटा है वह आदम है। And Jesus Christ never left the Father's house any time. और यीशु मसीह ने कभी भी पिता का घर छोड़ा नहीं। And he had been obedient to Father. और यीशु मसीह हमेशा पिता के पास आज्ञा पालन करने वाले बने रहे। But the first Adam who came from the dust, लेकिन पहला आदम जो मिट्टी से आया, he did sin against the Father. उसने पिता के विरोध में पाप किया। And he lost everything. और उसने अपना सब कुछ खो दिया। And he was cast out from the garden. और उसे अदन बाग से निकाल दिया गया। So 1 Corinthians 15 chapter 45. तो पहले कोरिन्थी की पत्री 15वां अध्याय 45वां वचन। Here Paul is introducing to Adam. यहाँ पर पौलुस दो आदम के बारे में बता रहे हैं। First Adam, the prophet who came from dust. पहला आदम जो भविष्यवक्ता था जो मिट्टी से आया। And the last Adam, Jesus Christ, who came from heaven. और जो अंतिम आदम, छिल्ला आदम था जो यीशु मसीह थे जो स्वर्ग से आए। But when Jesus Christ said about the father and two sons story, लेकिन जब यीशु मसीह ने पिता और उसके दो बेटे के बारे में कहानी कही, he didn't talk about himself. तब यीशु ने अपने बारे में बात नहीं की। And he cannot be angry when people repent. और जब लोग पछतावा करे तो यीशु मसीह कभी गुस्सा नहीं कर सकते। And he is not pleased. He cannot be displeased. और ऐसा हो तो यीशु मसीह कभी उदास नहीं होते, उनको अच्छा लगता है। Jesus loved to see new people coming to God. नए लोग परमेश्वर के पास आए, ऐसा यीशु को देखना अच्छा लगता So है। we cannot compare the elder son with Jesus Christ. तो यह कहानी में बड़ा बेटा जो है उसकी तुलना हम यीशु मसीह के साथ नहीं कर The elder सकते। brother got angry. बड़े बेटे को गुस्सा आया। But Jesus Christ went out to preach the word of God and said, God is showing mercy to you. लेकिन यीशु मसीह तो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हुए निकले और कहा कि परमेश्वर तुम सब पर दया दिखा रहा है। And want that you come back to your senses. और परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पछतावा कर लो और वापस आ जाओ। Luke 15 chapter 25 to 28, this is about elder brother story. लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय 25 से 28वें वचन में बड़े भाई के बारे में लिखा हुआ है। The elder brother, when he came out in the he was out in the field, and when he came back home, कि बड़ा बेटा जब खेत में था, जब वापस घर आया, he heard music and dancing. तब उसने नाचने का और गाने बजाने का शब्द सुना। And he called one of the servant and asked what it all mean. तब एक दास को बुलाकर उसने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, इसका अर्थ क्या समझूं। And this elder brother heard that my younger brother is returned. तब बड़े भाई को यह सुनाया गया कि तेरा छोटा भाई वापस आया है। And so your father is happy and he has arranged all this feast. इसीलिए तेरे पिताजी खुश है और ये पर्व ठहराया है आनंद के लिए। But this elder brother got angry. लेकिन यह बड़े भाई को गुस्सा आया। He was not happy to go in and meet the
his son, his brother. और वह अंदर जाकर अपने छोटे भाई से मिलने के लिए उसकी तैयारी नहीं थी, वह खुश नहीं था। And he went to his home, to his room. और वह अपने खंड में चला गया। This cannot be Jesus. और यह चरित्र, यह पात्र तो यीशु नहीं हो सकते। The father came out and begged him to do so. Please come. पिता ने पिता उसके पास गए और भीख मांगी कि मेहरबानी करके तू भी हमारे साथ आ जा। And he said no, verse 29. और उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, 29वां वचन। So this cannot be Jesus who is not pleased with Father and not happy with Father. तो जो पिता के साथ खुश नहीं है, ऐसा जो होता है, ऐसे यीशु मसीह तो यह नहीं है। But he is pleased when to obey Father's commandment. लेकिन पिता जो कुछ भी कहे तो यीशु मसीह को तो अच्छा लगता है, खुश होते हैं और पिता की बात मानते हैं। So people, they interpret this elder brother with Jesus Christ. तो लोग या बड़े भाई को यीशु मसीह के साथ तुलना करते हैं। Now what we believe and what we have studied, और अब हम क्या मानते हैं और हमने क्या अभ्यास किया है, what we interpret with this elder brother, what we compare with this elder brother. या बड़े भाई की तुलना हम किसके साथ करते हैं? Those are the Jew people. यह जो बड़ा भाई है यह तो यहूदी लोग हैं। They got commandment and they are following God's word strictly. उनके पास सारी आज्ञाएं आई और वे गंभीरता से परमेश्वर के वचनों का पालन करते आए And हैं। even with them there is a covenant. और उनके साथ ही परमेश्वर का करार है, नियम है। And they are living day to day obeying God's commandment. और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए दिन प्रतिदिन वे जीते हैं। While the Gentile are the younger brother. और जो विदेशी अन्य जाति के लोग हैं वह छोटा भाई है। They are without God. वे परमेश्वर के बिना है। They are now in the world in their pleasure. वे अपनी खुशी में, संसार में, दुनिया में खोए हुए हैं। Ephesians 2:11-14. एफएससी की पत्री 2 अध्याय 11 से 14 वचन। Here Paul, the Jew man, he is talking about Gentile. यहाँ पर पौलुस जो एक यहूदी व्यक्ति है वह अन्य जाति के लोगों के बारे में बात कर रहे He हैं। says, और पौलुस कहते हैं you were once Gentile. कि तुम एक बार तो अन्य जाति के थे, विदेशी थे। And you were called uncircumcised people. और तुम्हें तो खतना रहित कहा गया है। And remember, you were far from Christ. और याद रखो कि मसीह से तुम दूर थे। And you were shut out from citizenship of Israel. You were not been welcomed in Israel. और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे। इज़राइल में तुम्हारा कोई स्वागत नहीं था। You were stranger to the covenant founded on God's promise. और परमेश्वर की प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी तुम नहीं थे। You were in the world without hope and without God. और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। So the younger brother, when he was lost in the world, he was without the father. तो जब छोटा भाई संसार में खो गया तो वह पिता के पिता रहित हो गया था। Verse 13. 13 वचन। But through Jesus Christ, now you who were far had came near with us to us. पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे निकट हो गए हो। Now you are brought with the Jew people. और अब तुम्हें भी यहूदी लोगों के साथ लाया गया है। Genesis, it's verse 17, verse 18 further. और आगे 17वां और 18वां वचन। Christ came with the good news to peace for you who were far off. और मसीह ने आकर तुम जो दूर के थे तुम्हें भी सुसमाचार सुनाया। And the peace for those who were near. और जो निकट थे उनके लिए भी मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। Verse 18. 18वां For वचन। it is through Jesus Christ that we, the Jew, and you, the Gentile, are united one in spirit, or we are now one in home. क्योंकि यीशु मसीह के ही द्वारा हम दोनों अर्थात हम यहूदी और तुम अन्य जाति के लोग एक हो गए हो और एक घर में आ गए हो। And now we are able to approach to the Father
और अब हम पिता के सामने जा सकते हैं। The Jew, they don't like the Gentiles. यहूदी लोगों को अन्य जाति के लोग पसंद नहीं है। If you have read John 4th chapter, it's a story of a Samaritan woman. यदि आपने पढ़ा हो यूहन्ना का सुसमाचार 4था अध्याय, तो वहां पर सामरी स्त्री की कहानी है। And she was talking with Jesus Christ, the Jew. और वह सामरी स्त्री यीशु मसीह जो यहूदी थे उनके साथ बात कर रही थी। And she said, और उसने कहा stay away, O Jew, Jesus. कि हे यीशु, तू यहूदी है, मुझसे दूर रह, Because you don't talk with us. We are poor and we are the sinner people. क्योंकि तुम यहूदी लोग हमारे जैसे कंगाल नीची कक्षा के लोगों के साथ, पापियों के साथ बात नहीं करते। The Jew, they think that we are the high post people or high caste people. यहूदी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो ऊंची पदवी वाले या ऊंचे जाति वाले लोग हैं। And really they are the elder people. और हाँ, सच में यहूदी लोग बड़े लोग हैं। John 7 verse 49. यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय 49वां वचन। The Pharisee, they said, फरीसी लोगों ने कहा, we know those who don't have law, they are under curse. कि हम जानते हैं कि जिन लोगों के पास व्यवस्था की किताब नहीं, वे श्राप के अधीन है, श्रापित है। So here we see the Jew mentality. तो यहाँ पर यहूदी लोगों की मानसिकता को हम देखते हैं। They say we are with the law and those people are without the law. यहूदी लोग कहते हैं कि हमारे पास तो व्यवस्था की किताब है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा शास्त्र नहीं है। Galatians 2nd chapter 15. गलाती की पत्री 2 अध्याय 15वां वचन। When Paul met Peter, both were Jew. जब पौलुस पत्रस से मिले और यह दोनों यहूदी थे, This Paul said to Peter, या पौलुस ने पत्रस से कहा we are Jew by birth कि हम जन्म से यहूदी हैं and we are not outcasted of like this outcasted of Gentile. और पापी अन्य जातियों में से हम नहीं We हैं। are not sinner. हम पापी नहीं है अन्य जातियों The के समान। elder brother was not sinner, but he was obedient one. जो बड़ा बेटा था वह पापी नहीं था, लेकिन वह आज्ञा पालन करने वाला बेटा था। But the Gentile, they are called outcasted people. लेकिन अन्य जाति के लोगों को पापी कहा गया है और बाहर के लोग कहा गया है। Hebrew 12 and verse 8. इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 8वां वचन। This is in this letter. यह पत्री में A father, if he is scolding his son, then that is love. कि पिता यदि अपने बेटे को डांटे तो यह तो प्रेम है। And verse 8 says, और 8वां वचन if you कहता है are felt without that discipline, if you are not been punished, कि यदि तुम्हें ताड़ना नहीं मिली, सजा नहीं मिली, then it shows you are bastard, you are not of the father. तो इससे यह दिखता है कि तुम पुत्र नहीं हो, लेकिन तुम व्यभिचार के संतान हो, पिता के नहीं हो। So Jew, they believe we are having one father and other people are having many fathers. तो यहूदी लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा तो एक ही पिता है, एक पिता के हम हैं, और दूसरे लोगों के तो बहुत सारे हजारों पिता है। Yes, the Gentile have many God. हाँ, अन्य जाति के लोगों के बहुत सारे परमेश्वर है। Jew have just one God and that is they call him Father. और लेकिन यहूदियों का केवल एक ही परमेश्वर है और उसे वे लोग पिता कहते John हैं। 8 and verse 41. यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 41वां वचन। Jesus said, यीशु ने कहा, are you doing what your father or Abraham did? क्या तुम्हारा पिता ने जो किया है और या फिर इब्राहिम ने जो किया, क्या तुम वे काम कर रहे हो? They said, तो उन्होंने कहा we are not bastard. कि हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, We have one Father and God Himself. हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। So Jew mentality was there. Other people are outcasted, other people are sinner, other people are not obeying God. तो यहूदी लोगों की मानसिकता यह थी कि दूसरे अन्य जाति के लोग, वे व्यभिचार के लोग हैं, वे पापी है और नीची कक्षा के लोग हैं। So we compare this elder brother to Jew people. तो हम यह बड़े भाई को यहूदी लोगों के साथ तुलना करते हैं। And the last one who came back, he is Gentile. और जो खोया हुआ था वापस आया, ये वह अन्य जाति है, विदेशी है। And I will say he came in a sense because grace was
grace was, God grace came to him. और मैं कहूंगा कि उसे बुद्धि आई क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। Praise Lord. परमेश्वर का महिमा हो। We are Gentile and we are now reading Bible, the book of Jew. हम विदेशी लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, और अब हम बाइबल पढ़ रहे हैं जो यहूदी लोगों की किताब है। Look at 15 chapter 23. लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 23वां वचन। Ring. The ring was brought. कि अंगूठी लाई गई। What it represent? अंगूठी क्या दर्शाती है? It means I accept you. By putting the ring, people they accept the relationship. उसका अर्थ होता है कि अंगूठी पहना कर लोग जैसे संबंध का स्वीकार करते हैं, वैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा स्वीकार करता हूँ। Our father said, I accept you as my son. पिता ने कहा कि मैं तुझे अब मेरा बेटा मानकर स्वीकार करता हूँ। I make you wear it. मैं तुझे यह अंगूठी पहनाता हूँ, पहन ले। In wedding ceremony, we know people exchange rings. हम शादी के समारोह में हम जानते हैं कि लोग अंगूठी को अदला बदली करके लेते हैं। Yes, a man will put ring to they will put they will make wear ring to the woman and will say, I take you as my wife. जो पुरुष होगा वह अंगूठी स्त्री को पहनाएगा और कहेगा कि मैं तुझे पत्नी मानकर स्वीकार करता I हूँ, accept you. मैं तेरा स्वीकार करता हूँ। And same way the woman will make wear the ring to the man and say, I accept you. Come close. I accept you as my husband. उसी तरह स्त्री भी अपनी अंगूठी पुरुष को पहना कर कहती है कि मेरे और करीब आओ, मैं तुम्हें अब मेरा पति मानकर स्वीकार करती हूँ। So putting ring, it represents that you are accepted in the family. तो अंगूठी पहना कर आप ऐसा दिखाते हो एक दूसरे को कि अब परिवार में तुम्हारा स्वीकार कर लिया So गया है। father gave ring, make him wear and accepted him in the family. तो पिता ने उसे अंगूठी दी, पहनाई और अपने परिवार में उसका स्वीकार किया And said, you are my son. और कहा कि तू मेरा बेटा When है। someone take baptism, it is a sign of wearing ring. और जब कोई बपतिस्मा लेता है तो वह अंगूठी पहनने का जो है ऐसा चिन्ह है। We are accepting that though the people are accepted in God's family and are called son. लोगों को परमेश्वर के परिवार में स्वीकार किया जाता है और उन्हें परमेश्वर के बेटे कहा जाता है। When someone go in baptism, one go in that ceremony, बपतिस्मा की जो क्रिया है उसमें जब कोई जाता है they dip themselves, वे अपने आप को डुबोते हैं, saying, I am dead. ऐसा कहते हुए कि अब मैं मरा। And Jesus Christ raising him from the death and accepting in the family. और यीशु मसीह उसे मृत्यु से जिलाते हैं और परिवार में उसका स्वीकार करते हैं। So when someone is being ringed in those days, they accept them. तो उन To दिनों show में that I accept you. उन दिनों में वे लोग एक अंगूठी इसीलिए पहनाते थे, ऐसा दिखाने के लिए कि तुम्हारा अब हम स्वीकार करते हैं। Now you are not no more a prodigal son, but I accept you as my own son. और अब से तुम एक ऐसे Bastard, but I call you my son. अब से तुम ऐसे व्यभिचार के संतान बेटे नहीं हो, लेकिन तुम्हें अब मैं मेरा बेटा कहता हूँ। So father had gave ring and accepted this son. तो पिता ने अंगूठी देकर इस बेटे का स्वीकार किया था। Even a fine, good, best robe was brought. What it represent? और एक सबसे अच्छा वस्त्र भी लाया गया, वह क्या निर्देश दिखाता है? I will say it's a sign of resurrection. मैं कहूँगा कि यह पुनरुत्थान का चिन्ह है। You, oh son, you are worthy for resurrection. कि हे बेटा, अब तू पुनरुत्थान के योग्य है। You were dead and now you are alive, came back to life. तू मर गया था और फिर से जीवित हुआ है, जीवन में आया है। And I am giving you a new body. और मैं अब तुझे नया शरीर दे रहा हूँ। So he was even not only accepted as son, but even he was given a new body. तो उसे केवल बेटे के रूप में स्वीकार ही नहीं किया गया, लेकिन उसे नया शरीर भी दिया गया। So when sinner who are lost in the world, तो पापी लोग जो जगत में खो गए हैं, but when he become the son of the father, लेकिन जब वह व्यक्ति पिता का बेटा बनता he है, is worthy to have new cloth.
तो उसे नए कपड़े मिले ऐसा वह योग्य बन जाता है। And again, here the word sandal was here we see sandal was also brought so that the son wear it. और यहाँ पर हम दूसरा शब्द चप्पल देखते हैं कि चप्पल भी लाए गए कि वह बेटा उस चप्पल को पहने। If someone come in your house, you don't give them sandal. यदि कोई आपके घर में आता है तो आप उसे चप्पल नहीं देते। But here we see the father giving sandal. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता बेटे को चप्पल देता It है। represents that now you have authority to come in and go out. उस यह दिखाता है कि अब तुझे अधिकार है कि तू घर में आ सकता है, बाहर भी जा You सकता can है। again go out. फिर से तू बाहर भी जा सकता है। The son now have authority to go out and come in. अब इस बेटे को अधिकार मिला कि वह बाहर भी जा सके और अंदर भी आ सकता The है। servant are not allowed to go out. और जो दास होते हैं उनको बाहर जाने की परवानगी नहीं होती But है। when you become son, लेकिन जब आप बेटा बन जाते हो then you can go out to preach the word of God. तो फिर आप बाहर परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए जा सकते हो And you can do the ministry. और आप सेवा के काम कर सकते हो, For you became again the son. क्योंकि फिर से आप बेटा बन गए हो। So the Gentile who were dead in sin, तो यह विदेशी लोग, अन्य जाति के लोग जो पाप में मरे हुए they were थे, made alive. उनको जीवित किया They गया। were lost in the world वे संसार में खो गए and थे, they were now found. अब वे वापस मिले। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। So the prodigal or the son who emptied or was run, he was the Gentile who was without father. तो यह फिजूल खर्ची बेटा, जो भटका हुआ बेटा था, जो भाग गया और उसने अपना सब कुछ खो दिया और कंगाल हो गया, यह तो विदेशी लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं। The property, it was the authority of the son. और जो संपत्ति है यह तो वह बेटे का एक अधिकार है। The son who are not in the family of God, परमेश्वर के परिवार में जो बेटे नहीं हैं, they have lost the authority to be called son. और उन्होंने बेटा कहलाने का अधिकार खो दिया था। But when they come to the church or come to the father, लेकिन जब वे पिता के पास या कलीसिया में वापस आते हैं, they again receive that property which is son. फिर से बेटे की जो भी संपत्ति है वही संपत्ति वे भी पाते हैं। Praise the Lord. परमेश्वर प्रभु का महिमा हो। And so this is the truth and what we believe and we have taught that. तो यह सत्य है और यह हम मानते हैं और हमने यह सिखाया है। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। And I will request again you see and listen the message और मैं विनती करूंगा कि फिर से आप इस संदेश को देखो, सुनो, so that it may be clear to you. ताकि आपको इस विषय में स्पष्टता मिल जाए। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। thank you for all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते We हैं। were outcasted. हम पहले अन्य जाति के बाहर के लोग थे We had many gods, और हमारे बहुत सारे देवता थे, but we returned back लेकिन हम वापस आए to the family which is called your family. जो आपका परिवार कहलाया गया है, उस परिवार के पास हम वापस आए। You are our father, आप हमारे पिता हो and you have given the same promises the Jew had. और यहूदी लोगों के पास जितनी भी प्रतिज्ञाएं वचन थे, सारे वचन वही वचन आपने हमें दिए हैं। Whatever the Jew were been blessed with, you have given us the same again. यहूदियों की जितनी भी आशीषें हैं, वे सारी आशीषें आपने फिर से हमें भी दी है। We thank you. हम आपका धन्यवाद करते Thank you हैं for this revelation. और यह ज्ञान के लिए आपका We धन्यवाद। pray for each one हम हर एक के लिए प्रार्थना करते who हैं, are watching, who are listening. जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, Give them grace to understand उनको समझने के लिए अनुग्रह दो and let your truth be spread. और आपका इस सत्य को फैलाया जाए। Whoever agree with this teaching, इस शिक्षण के साथ, इस शिक्षा के साथ जो सहमत होते they be हैं, blessed with Holy Spirit. उनको पवित्र आत्मा का आशीष मिले। Yes, Father, we pray in Jesus' name. हाँ पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते Bless हैं, all. सबको आशीष दो And whatever we have sowed, let we reap
100-fold. और हमने जो कुछ भी बोया है उसका हम 100 गुना प्रतिफल पाए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's continue to pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो, And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ As we करो, forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका Thy is है, power, पराक्रम आपका Thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name we confess. यीशु के नाम में हम कबूल करते हैं। Amen. आमेन। Amen. Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Thank you दे। for watching. देखने के लिए धन्यवाद। Share it. इसे बढ़ाते जाओ। Amen. आमेन। Praise God.